अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप लोग सब ठीक हैं। द टॉपिक फॉर टुडेज वीडियो इज़ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द लास्ट topic of this term. We have done 2 or 3 accounting principles in the past as well, but today we are going to have a look at all the principles and concepts involved in accounting जो अभी भी जो हम बाकी अकाउंटिंग के टॉपिक्स कर रहे हैं उनमें भी इन्वॉल्व होते हैं एंड इट इज़ दे विल बी अप्लाइड in many other topics that we are going to do in the future. Okay, so let's start. The first concept that we are going to talk about is the double entry concept, which basically can also be called the duality concept or the dual aspect concept. We already have done this before. This is basically obviously the foundation of double entry bookkeeping, as you know, stated here. And इसका मतलब क्या है? You can, you know, if you want to read the complete definition you can do that. मैं आपको इसका जो implication है वो समझाऊंगा सारे principles का. I will try to give examples as well. So duality या double entry concept का मतलब है that every transaction that takes place is going to have 2 effects or more than 2 effects on your business. So हम उन दोनों चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, दोनों इफेक्ट्स को. सो इसका ये भी मतलब हो सकता है कि व्हेनेवर वी डेबिट समथिंग तो कोई ना कोई चीज़ कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट ज़रूर होगी. सो इसका मतलब ये भी है कि अगर हमने 500 रुपीज़ डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किए हैं किसी भी अकाउंट में तो 500 रुपीज़ क्रेडिट साइड पे भी रिकॉर्ड होने ज़रूरी हैं. सो दिस इज़ बेसिकली व्हाट इज़ मेंट बाय द डबल एंट्री कॉन्सेप्ट और द डुअलिटी कॉन्सेप्ट. They've also given an example here. When an asset is bought, then obviously another asset, cash or bank, is also in simultaneously decrease. So इसका मतलब ये है कि obviously 2 effects इसीलिए होते हैं हर ट्रांजेक्शन के, क्योंकि अगर मैंने कोई चीज़ ख़रीदी है तो obviously वो चीज़ मेरे पास आ जाएगी, बट एक और इफेक्ट ये आ रहा होगा कि उस चीज़ के लिए मुझे पैसे भी देने हैं, अभी नहीं तो बाद में. इसीलिए हर ट्रांजेक्शन के just like this example 2 effects होते हैं. The second concept that we are going to talk about is the business entity concept. This is also known as the separate entity or economic entity concept. This also you must have done already. This states that the transactions related to a business must be recorded separately from those of its owners and any other business. In other words, while recording transactions in a business, we take into account only those events that affect that particular business. इसकी implication ये है कि you know we consider in accounting that the business and the owners are 2 separate entities, right? So we are doing accounting for the business, so we'll have a look at all the transactions from the point of view of the business only and not the owner, right? इसीलिए जब you know when someone starts a business तो हम उसको बिज़नेस के लिए कैपिटल कंसिडर करते हैं, राइट? हालांकि अगर हम दूसरे एंगल से देखें तो इफ़ आई एम स्टार्टिंग अ बिज़नेस और मैंने 100,000 बिज़नेस में इन्वेस्ट कर दिए हैं किसी भी, तो आई एम लूजिंग आउट ऑन 100,000 रुपीज़ क्योंकि वो मैंने एक बिज़नेस में इन्वेस्ट कर दिए. बट द बिज़नेस एट द सेम टाइम इज़ गेनिंग 100,000 रुपीज़, यानी बिज़नेस के पास वो पैसे आ रहे हैं, इनफ्लो हो रहा है, जबकि मेरे पास से क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है. सो हम बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजेक्शन्स को देख रहे होते हैं, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं. दिस इज़ what this concept basically means. Okay, the third concept that we are going to learn is the going concern concept. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है that the business entity will continue its operations in the future and will not liquidate or be forced to discontinue operations due to any reason. A company is a going concern if no evidence is available to believe that it will or will have to cease its operations in foreseeable future. Now, what implication this concept has is हम जब भी कोई डिसीजन ले रहे होते हैं बिज़नेस के बारे में तो वी ऑलवेज थिंक दैट द बिज़नेस विल कंटिन्यू टू रन इन द फोरसीएबल फ्यूचर. यानी हम हर बिज़नेस का जो डिसीजन लेते हैं वो ये सोच के लेते हैं कि बिज़नेस चलता रहेगा,
क्योंकि अगर हम ये सोचें कि बिज़नेस पता नहीं शायद बंद हो जाए तो फिर हमारे डिसीजंस सारे चेंज हो जाएंगे, राइट। इसकी एक और एग्जांपल ये हो सकती है कि अगर मुझे पता हो कि मैंने अगले हफ्ते अपना बिज़नेस बंद कर देना है तो क्या मैं किसी को क्रेडिट पर गुड्स बेचूंगा? नहीं बेचूंगा। सो सारी इम्प्लिकेशन, सारे डिसीजंस मेरे बिज़नेस के चेंज हो जाते हैं इफ़ आई स्टार्ट थिंकिंग कि मेरा बिज़नेस बंद हो जाएगा। इसीलिए गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि whenever you're dealing with the business and you're recording all the transactions of the business, you always keep thinking that the business will continue to run in the near future. All right. I've added numbers as well यहाँ पर. This is basically the third concept. पहला था हमारा duality and the second one was the business entity concept, right? Okay, so this was the third one. Now we move on to the fourth one. The name of the fourth one is historical cost concept, also known as cost principle of accounting. इस कॉन्सेप्ट का मतलब ये है दैट the assets and the liabilities of a business should be presented in accounting records at their historical cost. So if let's say I bought a motor car for 400,000, so basically 400,000 is the car's cost for my business, right? मेरे लिए ये कॉस्ट है. सो आफ्टर 2 years अगर मार्केट में वो गाड़ी बहुत महंगी हो जाती है एंड लेट्स से मार्केट में उसकी प्राइस जो है वो 600,000 हो जाती है, इन दैट केस एज वेल मैं अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में या अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में उस कार को 400,000 का ही शो करूँगा, विच इज़ माई कॉस्ट. मैं उसकी मार्केट वैल्यू को फ़िलहाल इग्नोर कर दूँगा. So this is what is meant by the historical cost concept, that you record your assets and liabilities at their cost. इन्होंने यहाँ इसकी example दी भी है that historical cost is the amount that was originally paid to acquire the asset, and it may be different from the current market value of the asset, right? So this is what is meant by historical cost. Okay, that brings us to the fifth concept. The name of the fifth concept is the money measurement concept. The money measurement concept states that a business should only record an accounting transaction if it can be expressed in terms of money. So हम accounting में सिर्फ उन चीज़ों को डील करते हैं which can easily be expressed in terms of money. So अगर हम ऐसी कोई चीज़ है जिसको कोई monetary value नहीं assign कर सकते तो we would not record any such thing in accounting, right? इसका एक और एग्जाम्पल ये भी हो सकता है, एग्जाम्पल्स ऑफ आइटम्स दैट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड एज अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस बिकॉज दे कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी इंक्लूड एम्प्लॉई स्किल लेवल. सो आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं अगर आपने कोई रखे हुए हैं, द स्किल लेवल दैट दे हैव, यू कांट पुट अ मॉनेटरी वैल्यू टू दैट, राइट. कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे पास 2,000 रुपीज़ की स्किल है या 400 रुपीज़ की स्किल है, राइट. So you can't put a monetary value to that, therefore you can't record it in accounting. Similarly, working conditions, resale value of a patent, you don't know what the resale value is going to be after 4 years. Value of an in-house brand, product durability, the quality of customer support, or the efficiency of administrative process. All these things are subjective in nature and you can't put a monetary value to them. So that is why you can't basically record these things in accounting, right? So as the name implies, money measurement, so you can only record things which can be measured monetarily or in money terms. Okay, that brings us to the sixth concept, which is the realization concept. Okay, now this is also known as revenue recognition principle. It refers to the application of accruals concept towards the recognition of revenue. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है that you can also call it conservatism principle. So इसका implication ये है that you have to be conservative while recording things in accounting. इसका मतलब ये है कि revenue is recognized by the seller when it is earned irrespective of whether cash from the transaction has been received or not. इसका मतलब ये है कि अगर let's say I'm selling a marker और a pen, ठीक है, और पेन मैं सेल कर रहा हूँ 100 रुपीज़ का, तो मुझे एक कस्टमर ने 100 रुपीज़ ऑलरेडी दे दिए, ठीक है.
मैंने उसको पेन अभी तक नहीं दिया। तो ये जो 100 रुपीज़ उसने मुझे पेन के लिए दिए हैं, आई कैन नॉट रिकॉर्ड दिस 100 रुपीज़ इन माई इनकम until and unless I deliver him the pen, right? So इसका मतलब ये है कि I can only record my revenue once I have realized it, ठीक है, और earned it, यानी जब मैंने अपना पेन जो उसको डिलीवर करना था कस्टमर को वो कर दिया, तो उस पेन के साथ जितने भी रिस्क्स एसोसिएटेड थे उस प्रोडक्ट के साथ वो मैंने बायर के पास ट्रांसफ़र कर दिए. नाउ आई एम इन अ पोजिशन टू रिकॉर्ड दिस 100 एज माई रेवेन्यू. So I am being conservative in the sense that I am not recording revenue that I am foreseeing. यानी मुझे पता है कि जब मैं पेन तो दे ही दूंगा तो 100 रुपीज़ जो मुझे ऑलरेडी मिले हुए हैं वो मैं अपनी इनकम में रिकॉर्ड कर लेता हूँ. आई कैन प्रिडिक्ट दैट, बट आई स्टिल डोंट रिकॉर्ड इट इन माई इनकम until and unless I realize the revenue, right? So this is what is meant by the realization concept. ठीक है. Okay, we move on to the next one, and the next one is the matching concept. ठीक है. The matching concept is basically an accounting practice whereby firms recognize revenues and their related expenses in the same accounting period. इसको simple words में हम कह सकते हैं that the purpose of the matching concept is to avoid misstating earnings for a period. So this basically means that your incomes for a particular accounting period and your expenses or costs for that particular accounting period should match. इसको मैं और सिंपल करने की कोशिश करता हूँ. फॉर एग्जांपल आई एम मेकिंग द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स फॉर लेट्स से 2019. ठीक है. अब ऑब्वियसली 2019 में मेरे पास कोई इनकम भी होगी मेरी एंड 2019 के कोई एक्सपेंसेस भी होंगे. नाउ आई हैव टू मेक श्योर इस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से आई हैव टू मेक श्योर दैट द इनकम्स दैट आई रिकॉर्ड in my accounting books and the expenses that I record in my income statement, both of these are related to 2019 only. ठीक है. यानी 2019 के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में मैं गलती से कोई भी चीज़ ऐसी ना ले लूँ जो कि किसी और अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड है. फॉर एग्जांपल 2018 से है या 2020 से. इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है फर्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए? इसकी एग्जांपल एक ये भी हो सकती है कि लेट्स से 2019 में मुझे एक बंदे ने 10,000 रुपीज़ दे दिए अगले साल के लिए 2020 के लिए. वो मुझे 2019 में 10,000 रुपीज़ दे गया है और उसने कहा है कि ये 10,000 अपने पास रख लो, मैं 2020 में इस 10,000 रुपीज़ का सामान आपसे ख़रीद लूँगा, गुड्स ख़रीद लूँगा. सो दिस मीन्स कि वो जो 10,000 रुपीज़ मुझे मिले हैं 2019 में वो 2019 से रिलेटेड नहीं है, वो 2020 से रिलेटेड है. वाई? बिकॉज वो जो रेवेन्यू मैं रियलाइज़ करूँगा वो 2020 में करूँगा, 2019 में नहीं करूँगा. सो इन दिस केस 2019 के इनकम स्टेटमेंट में जब मैं बना रहा हूँ वो इनकम नहीं आनी चाहिए. सो इन सिंपल वर्ड्स मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि आप अगर 2019 से रिलेटेड अकाउंटिंग कर रहे हैं तो सारी इन्फॉर्मेशन 2019 की ही लें. Guys, I know ये principles, these are basically very complicated sometimes, and sometimes they are very difficult to understand and apply. But right now I just want you to start memorizing and start learning the basics or the concepts of these principles, right? So obviously later on if there are any further confusions हम उनको clarify करने की कोशिश करेंगे एंड हम उनको जहाँ जहाँ उनकी एप्लीकेशन है उनकी एग्जांपल्स देखेंगे तो वो फर्दर भी क्लियर होती जाएंगी. ठीक है. सो अभी अगर आपको कोई प्रिंसिपल ऐसा वेग लग रहा है या किसी में डाउट क्रिएट हो रहे हैं तो यू डोंट नीड टू वरी. अभी हमें सिर्फ इनका कॉन्सेप्ट जहन में बनाना है और ये समझना है कि एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट का क्या मीनिंग हो सकता है. ठीक है. ओके, वील मूव ऑन. Okay, that brings us to the 8th concept, which is the prudence concept. इसका क्या मतलब होता है? इसका once again it is somewhat related to the realization principle जो हमने पहले किया है. Under the prudence concept, do not overestimate the amount of revenues recognized or underestimate the amount of expenses.
इसको सिंपल वर्ड्स में मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि इट मीन्स दैट even the possibility of a loss, even if there is a possibility of a loss or an expense being incurred, हम उसको record कर लेते हैं, ठीक है, being conservative. And incomes, we don't record incomes until and unless they are recognized. So once again, we are being conservative in accounting, right? So हम हर तरीके से ये कोशिश कर रहे हैं that the profits that we show to the owner of the business or the general public or anyone, they are not overstated. All right, when are the profits going to be overstated? जब हम income गलती से ज़्यादा शो कर दें या expenses गलती से कम शो कर दें, right? मैं यहाँ लिख भी देता हूँ उसको. See, प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं किसी भी बिजनेस का, उसकी इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं. तो अगर गलती से मैं इनकम ज़्यादा कर लूँगा या एक्सपेंसेस को गलती से कम शो कर दूंगा तो इन बोथ दीज केसेस मेरा प्रॉफिट ओवरस्टेट हो जाएगा, यानी जितना है उससे ज़्यादा शो कर रहा हूँ मैं. सो वी डोंट वांट दिस इन अकाउंटिंग. व्हाई? बिकॉज वी ऑलवेज ट्राई एंड बी कंजर्वेटिव, राइट? सो दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट इनकम्स को हम तब रिकॉर्ड नहीं करते जब तक वो हम अर्न नहीं कर लेते. जैसे कि अभी हमने रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट के एग्जाम्पल में देखा कि अगर मुझे किसी ने पैसे दिए हैं पेन के, बट मैंने अभी तक उसको पेन डिलीवर नहीं किया, तो मैं उस रेवेन्यू को या उस इनकम को तब तक रिकॉर्ड नहीं करूँगा जब तक मैं उसको पेन डिलीवर ना कर दूँ. जबकि एक्सपेंसेस की अगर पॉसिबिलिटी भी है तो मैं उसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ. सो दिस इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट. ऑलराइट, okay, that brings us to the ninth concept, which is called the materiality concept or the materiality principle. Now, what does this say? This states that an accounting standard can be ignored if the net impact of doing so has such a small impact on the financial statements that a user of the statements would not be misled. ठीक है, ये जो पार्ट है अंडर, इसको आप फिलहाल इग्नोर कर सकते हैं. ये हम लेटर ऑन इन ग्रेड 11 डिस्कस करेंगे. बट राइट नाउ यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दैट things which do not have a material value for the business, they can be ignored, right? For example, एक business है जिसका 20 मिलियन का प्रॉफिट हो रहा है एंड उसके इनकम स्टेटमेंट में एक एक्सपेंस था जो कि सिर्फ 5 रुपीज़ का था. लेट से उसने एक एग्जांपल ले रहा हूँ, थंबप्रिंट्स खरीदी थी, ठीक है. नाउ दिस इज़ this amount is basically for a business which is earning 20 odd millions. This amount of rupees 5 is basically immaterial, right? इसकी कोई material value इस business के लिए नहीं है. So we can basically ignore this expense of 5 rupees and not show it in the income statement of such a business. So we only show things which have a material value for the business. All right. Now, obviously, this will change from business to business. This will vary. एक छोटा business अगर है जिसका total profit है let's say 1200, उसके लिए ये expense भी material value रखता है. But एक बहुत बड़ा business है जिसका 100 million profit है, उसके लिए ये 5 rupees material value नहीं रखता, right? So we only record things in accounting which have a material value for a particular type of business that we are dealing with. Okay, that brings us to the 10th accounting principle, which is the consistency principle. Now, this states that once you adopt an accounting principle or method, continue to follow it consistently in future accounting periods. इसका मतलब यह है कि if we have started recording a certain thing in accounting following a certain method, then we can't actually change the method again and again. So अगर there is a topic called depreciation जो हम next year करेंगे. Similarly, depreciation को चलो हम फिलहाल साइड पे रख देते हैं. If you have started following a certain method of recording something, for example, आपने फॉलोइंग द डबल एंट्री कॉन्सेप्ट आप हर चीज़ के 2 इफेक्ट्स रिकॉर्ड कर रहे हैं. नाउ आउट ऑफ द ब्लू सडनली आप ये नहीं कह सकते कि नहीं जी मैंने पिछला साल पूरी अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो किया,
इस साल मैं अकाउंटिंग में डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं करूँगा. यू कांट डू दैट, राइट? सो योर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैव टू बी कंसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द बिजनेस. ठीक है. सो अगर मैंने डेप्रिसिएशन की एग्जांपल मैं वापस ले आता हूँ बीच में. डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के मेथड्स होते हैं, एंड अगर मैंने कोई एक मेथड आइडेंटिफाई कर लिया है कि मैं ये मेथड फॉलो करूँगा, तो मैं लेटर ऑन उस मेथड को चेंज नहीं कर सकता. ये मतलब है इस प्रिंसिपल का. ठीक है. सो दैट ब्रिंग्स अस टू द लास्ट कॉन्सेप्ट, हाउ शुड इन्वेंट्री बी वैल्यूड. हम अपनी इन्वेंट्री को कैसे वैल्यू करते हैं. नाउ टू स्टार्ट विद, यू शुड नो व्हाट इन्वेंट्री इज. सो एनीथिंग दैट इज बॉट फॉर रीसेल इज बेसिकली योर इन्वेंट्री, राइट? सो इन्वेंट्री को हम कैसे वैल्यू करते हैं? वी फॉलो दिस कॉन्सेप्ट. वी कॉल इट लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू. ठीक है. इसका एक शॉर्ट फॉर्म आप इसको कह सकते हैं LCM, लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट रूल. LCM रूल कह सकते हैं आप इसको. ठीक है. सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हमने पहले हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं. जनरली कंपनीज शुड यूज हिस्टोरिकल कॉस्ट टू वैल्यू इन्वेंट्रीज एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. हाउएवर सम सर्कमस्टेंसेस जस्टिफाई डिपार्चर्स फ्रॉम हिस्टोरिकल कॉस्ट. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यूजुअली तो अभी हमने हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि हमने हर चीज़ को अकाउंटिंग में उसी चीज़ पे वैल्यू करना है जितने की हमने वो चीज़ ख़रीदी थी. तो इन्वेंट्रीज़ को भी हम उसी अमाउंट पे वैल्यू करते हैं जितने की हमने वो इन्वेंट्री ख़रीदी थी. बट समटाइम्स इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ your inventory is below your cost, in that case हम फिर कॉस्ट पे वैल्यू नहीं करेंगे अपनी इन्वेंट्री को, बल्कि मार्केट वैल्यू पे इन्वेंट्री वैल्यू करेंगे. ऑलराइट. इसकी मैं अभी एक एग्जांपल भी शो कर देता हूँ. सो इसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि लेट्स से आई हैव अ प्रोडक्ट विच इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट ए, एंड उसकी कॉस्ट थी 10 रुपीज़. मैंने 10 रुपये में ख़रीदा था, बट उसकी मार्केट वैल्यू है 15 रुपये. यानी उसकी जो रियलाइजेबल वैल्यू है, यानी जो सेलिंग प्राइस है मार्केट में, वो 15 रुपये है. तो मैं उसको किस वैल्यू पे अपने पास रिकॉर्ड करूँगा? कॉस्ट पे. ठीक है. वाई? बिकॉज कॉस्ट इज़ इन दिस केस लोअर देन द मार्केट वैल्यू विच इज़ 15. सो इन दोनों में से लोअर अमाउंट इज़ 10. तो मैं 10 पे वैल्यू करूँगा अपनी प्रोडक्ट ए को, 15 पे नहीं करूँगा. सो यही यहाँ लिखा है, लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट रेट. सो इन दोनों में से जो लोअर है मैं उस पर उसको अपनी इन्वेंट्री को वैल्यू करूँगा. Similarly, we have another product which is product B. Now in this case, the cost of the product is 8 rupees, whereas the market value is only 6. So this means that अब उसकी market में price कम हो चुकी है, and we can only sell it for rupees 6 in the market. So in this case, being conservative again, we wouldn't record this piece of inventory product B at rupees 8, बल्कि अब हम इसको 6 पे record करेंगे. Why? Because 6 is obviously lower than 8. So we follow this principle, lower कॉस्ट या मार्केट में वैल्यू में से जो लोअर होगा मैं उस पर अपनी इन्वेंट्री को वैल्यू करूँगा. ठीक है. इसके फर्दर एग्जांपल्स भी हम करेंगे, इम्प्लिकेशंस भी करेंगे. पास्ट पेपर्स के जितने क्वेश्चंस हो सकेंगे प्रैक्टिस, वो भी हम करने की कोशिश करेंगे. वी आर गोइंग टू हैव अ क्लास टुमारो मॉर्निंग एज वेल. एंड जो पिछली 2 वीडियोज़ थी विच वर रिलेटेड टू the previous topic, which was capital and revenue expenditure and capital and revenue income, उससे रिलेटेड या इन प्रिंसिपल्स की वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आपके जहन में, सो प्लीज़ ब्रिंग इट अप इन टुमारोज क्लास, so that if there are any confusions we can take care of them. And later on tomorrow I'm going to further explain these two, and we are going to have a look at some of the examples as well, which will further explain the implications and applications of these accounting principles. All right, so please try and attend tomorrow's class, and do ask me questions related to both these topics. All right, thank you so much.